are you? I hope you all are fine. As you know, we studied shapes and patterns in the last class. In this class, we will study number and numeration. Here are the contents which we will discuss in this class. First is revision. Firstly, we will take the revision of shapes and patterns. Second is 2-digit and 3-digit number on abacus. And third is number names. And fourth is numerals. Please write down in your notebook. बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने ये होमवर्क कर लिया होगा। चलो अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल। देखिए इस ट्रायंगल में 2 डॉट्स हैं, सेकंड ट्रायंगल में 3 डॉट्स हैं, थर्ड ट्रायंगल में 4 डॉट्स हैं। हम देखते हैं कि ये डॉट्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। अब हम नेक्स्ट में ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल में 5 डॉट्स डालेंगे। क्यों? क्योंकि 4 के बाद 5 आता है। फिर नेक्स्ट हम ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल में 6 डॉट्स डालेंगे क्योंकि 5 के बाद 6 आता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि सबसे पहले स्टार बना हुआ है, स्टार के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद स्टार, स्टार के बाद स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए? स्क्वायर के बाद स्टार आना चाहिए, तो हम स्टार बनाएंगे। अब स्टार के बाद क्या आना चाहिए? स्टार के बाद स्क्वायर बना हुआ है, तो स्टार के बाद हम स्क्वायर बनाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 5, 10, 15। अब हम देख रहे हैं कि 5 जो है आगे बढ़ रहा है। 5 में 5 प्लस किया 10 आया, 10 में 5 प्लस किया 15 आया। अब 15 में 5 प्लस करेंगे 20 आएगा, 20 में 5 प्लस करेंगे 25 आएगा, 25 में 5 प्लस करेंगे 30 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6। अब 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 और 10 में 2 प्लस करेंगे 12। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। Let's take the revision of different shapes. First is square, second is rectangle, third is triangle, fourth is circle. Square has 4 sides, 4 corners and all sides are equal. Rectangle has 4 sides, 4 corners and opposite sides are equal. Triangle has 3 sides, 3 corners. Its sides may or may not be equal. And last is circle. Circle has no side, no corner. Please note it down in your notebook. Now we will study about the numbers. The question arises, which are 1-digit numbers? Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0 are called digits. In all, there are 10 digits. 2-digit numbers, numbers from 10 to 99 are 2-digit numbers. 3-digit numbers, numbers from 100 to 999 are 3-digit numbers. Please note down in your notebook. Now we will discuss smallest and largest numbers. Smallest 2-digit number is 10. Largest 2-digit number is 99. As we know that 2-digit number starts from 10 and ends at 99. So we can say smallest 2-digit number is 10 and largest 2-digit number is 99.
Smallest three-digit number is 100 and largest three-digit number is 999. As we know that three-digit number starts from 100 and ends at 999. So, smallest three-digit number is 100 and largest three-digit number is 999. Please note down in your notebook. Now we will discuss two-digit numbers with the help of abacus. Number is given 43. First of all, we see 3 is at ones place and 4 is at tens place. So we will draw 3 beads on ones place and 4 beads on tens place. In this way, number 43 is formed. Now the next example is 16. 6 is at ones place and 1 is at tens place. So we will draw 6 beads on ones place and 1 bead on tens place. In this way, number 16 is formed. Our next example is 64. 4 is at ones place. So we will draw 4 beads on ones place and 6 beads at tens place. In this way, number 64 is formed. The next example is 50. We see that 0 is at ones place. So we will draw no bead on the ones place and we will draw 5 beads on tens place. In this way, number 50 is formed. Please note down in your notebook. Now we will discuss three-digit number on abacus. Here is the number given 452. 2 is at ones place, 5 is at tens place and 4 is at 100 place. We will draw 2 beads on ones place, 5 beads on tens place and 4 beads on 100 place. In this way, number is formed 452. The next example is 243. Here is 3 is at ones place, 4 is at tens place, 2 is at 100 place. We will draw 3 beads on ones place, 4 beads on tens place and 2 beads on 100 place. In this way, number is formed 243. The last example is 165. We see ones place has 5 and tens place has 6 and 100 place has 1. So we will draw 5 beads on ones place, 6 beads on tens place and 1 bead on 100 place. In this way, number is formed 165. Please note down in your notebook. अब हम नंबर नेम्स लिखना सीखेंगे। सबसे पहले जो भी हमें नंबर दिया हुआ होगा उसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। वंस, टेंस, हम हमेशा जो भी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे वो राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे। 6 के ऊपर वंस, 2 के ऊपर टेंस। 2 टेंस का मतलब होता है 20 और 6 वंस का मतलब होता है 6। इस तरीके से 20 + 6 हमारा नंबर बना 26। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 168। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से ऊपर शॉर्ट फॉर्म लिखना शुरू करेंगे। 8 के ऊपर वंस, 6 के ऊपर टेंस, 1 के ऊपर 100। जब भी हम नंबर नेम्स पढ़ना सीखते हैं तो डिजिट को देखते हुए ऊपर शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। 100, 6 टेंस, 8 वंस। 6 टेंस का मतलब होता है 60 और 8 वंस का मतलब होता है 8।
100 प्लस 60 प्लस 8, इस तरीके से हमारा नंबर बना 168। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3, 3 के ऊपर वंस लिखेंगे, 2 के ऊपर टेंस लिखेंगे, 1 के ऊपर 100 लिखेंगे। अब 2 के ऊपर टेंस का मतलब होता है 20 और 3 वंस, 20 प्लस 3, 100 प्लस 20 प्लस 3, इस तरीके से हमारा नंबर बना 123। नेक्स्ट 181, वंस के नीचे 1, टेंस के नीचे 8, 100 के नीचे 1, 1 को देखते हुए ऊपर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो इसे पढ़ेंगे हम 108 टेंस 1 वंस। 8 टेंस का मतलब होता है 80 और 1 वंस का मतलब होता है 1। 100 प्लस 80 प्लस 1, इस तरीके से हमारा नंबर बना 181। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज 217, वंस के नीचे 7, टेंस के नीचे 1, 100 के नीचे 2, 2 को देखते हुए ऊपर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे 200। 1 टेंस का मतलब होगा 10 और 7 वंस का मतलब होता है 7। 200 प्लस 10 प्लस 7, इस तरीके से हमारा नंबर बना 217। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। अब हम नंबर नेम से न्यूमरल्स लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 194। 100 से पहले 1 लिखा हुआ है तो हम 100 के नीचे 1 लिखेंगे। 90 का मतलब होता है 9 टेंस। 4 का मतलब 4 वंस। इस तरीके से नंबर बन गया हमारा 194। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 236। 100 से पहले 2 लिखा हुआ है तो हम 100 के नीचे 2 लिखेंगे। 30 का मतलब होता है 3 टेंस। 6 का मतलब 6 वंस। इस तरीके से नंबर बना 236। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 152। 100 से पहले 1 लिखा हुआ है तो 100 के नीचे 1 लिखेंगे। 50 का मतलब होता है 5 टेंस। 2 का मतलब 2 वंस। इस तरीके से नंबर बना 152। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 364। 100 से पहले 3 लिखा हुआ है तो हम 100 के नीचे 3 लिखेंगे। 60 का मतलब 6 टेंस। 4 का मतलब 4 वंस। इस तरीके से नंबर बना 364। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। अब हम आज की क्लास के लास्ट पार्ट पर आते हैं जो कि आपका होमवर्क है। आपको ये होमवर्क अपनी मैथ्स कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम नंबर एंड न्यूमरेशन का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।